Good morning, students. Welcome to your e-learning class. This is your mathematics lecture, and today I am going to start chapter 13, that is direct and inverse proportions. At first, we start with the what is direct and inverse proportion. Students, a direct and inverse proportions are used to show how two amount and quantities are related to each other. दो क्वांटिटी या कोई दो अमाउंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू पता कर सकते हैं और वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट A is directly proportionate to B, A is directly proportionate या proportion to B, we can represent it by A is directly proportionate to B. A is directly proportionate to B. If we say that A is inversely proportionate to B, A is inversely proportionate to B, then we can represent it by A is inversely proportionate to 1 upon B. जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट की बात आती है तो A is proportionate to 1 upon B. इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में हम ऐसे इसको प्रोपोर्शनेट करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में A डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू B. And now students, difference between the direct and inverse proportion. In direct proportion, ratio between the matching quantity stay the same. When they are divided, they form an equivalent fraction. Means matching quantity like x1 upon y1 equals to x2 upon y2. इसकी रेशियोज हमेशा मैचिंग क्वांटिटीज के रेशियो हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आते हैं. लाइक यहाँ पे हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है तो उसके पैरेलल की क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है. लाइक इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बॉल इज 550, if the cost of 10 ball is 550, then what will the cost of 20 ball? तो यहाँ पे अगर 20 बॉल की संख्या अगर मैंने बड़ी कर दी तो अमाउंट की संख्या भी बड़ी हो जाएगी. अगर क्वांटिटी मैंने कम कर दिया तो उसके अमाउंट भी कम हो जाएंगे. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू. एंड नाउ and in inverse proportion, one quantity increases, the other quantity भी decreases. It is inversely proportionate to each other. The product of the matching quantity stay the same. यहाँ पे मैचिंग क्वांटिटी के प्रोडक्ट सेम होते हैं. जैसे x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2. यहाँ जैसे क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसके अमाउंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. जैसे अगर हम व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा, कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचने के टाइम क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, कम होंगे. तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट सेम होते हैं. हमें इस फॉर्मूला से उसे सॉल्व करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, if the value of x is increases, the value of y is also increases in such a way that the ratios are remain constant. Then the ratios are remain constant. And in inverse proportion, if the quantity is increases, the other quantity decreases. If the one quantity is increases, the other quantity is decreases.
Like if the number of workers is increases, the time taken to finish the job is decreases. अगर कोई काम करना है, कोई काम को फिनिश करना है, किसी वर्क को फिनिश करना है, तो वहां पे वर्कर की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीजेस, देन वर्क कंप्लीट टाइम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में लेके सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम and solve some question based on this. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it travel in 20 minutes? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में दी हुई है, तो 75 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे किलोमीटर बढ़ाएंगे, आवर भी बढ़ेगा, अगर किलोमीटर घटेगी तो टाइम टेकन भी घटेगा। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में है तो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। So since the speed is in uniform, so the distance covered is directly proportion to time. So 75 kilometer per hour means x1 is 75 kilometers and y1 is equals to 60 minute. x1 is equals to 75 kilometers and y1 is equals to 60 minutes and y2 is given 20 minutes. We have to find out the x2, है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रेशियो इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 upon y1 is equals to x2 upon y2. Solve it. x1 is 75 upon y1 60 minutes is equals to x2 and y2 is what, 20 minutes. What to do here, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 75 multiplied with the 20 and divided by the 60 is your x2. Now 3 times and this is 25. x2 क्या निकल के आया, x2 is equals to 25 किलोमीटर। x2 is your kilometers. So the train will covered a distance of 25 kilometers in 20 minutes. Students, this is another question. If a 15 workers
can build a wall in 48 hours. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? In 30 hours means यहाँ पे क्या है, 15 वर्कर्स जो हैं 48 आवर में वर्क को फिनिश करते हैं, तो 30 आवर में, मतलब यहाँ पे देखिए आवर 48 है और आपसे क्या पूछ रहा है, इन 30 आवर, मतलब आवर कम हो गए, तो क्या करना होगा, हमें वर्कर की संख्या बढ़ानी होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड आवर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में सेम क्वांटिटीज के हम लोग क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हमारा सॉल्यूशन निकलता है। वहां पे क्या था, फॉर्मूला हमने क्या किया था, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, whereas x1 y1 क्या है, x1 अगर वर्कर है तो y1 आवर्स है, x2 वर्कर्स है तो y2 क्या है, आवर्स है। ठीक है, तो पहले लिस्ट बना लीजिए, x1 इक्वल्स टू 15 वर्कर्स, y1 इक्वल्स टू 48 आवर्स, x2 हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड y2 क्या है, 30 आवर्स है। तो इस पे पुट कीजिए, x1 15 मल्टीप्लाइड विद 48 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 इज 30। नाउ क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ डिवीजन में आएगा, ले आइए 15 इंटू 48 अपॉन 30 इक्वल्स टू x2, x2 इज वर्कर्स, x2 इज योर वर्कर्स। So solve it, 15 टू जा 30, यहाँ पे ये 24 मीन्स x2 इक्वल्स टू 24 वर्कर्स। We have to conclude our answer. So that is to finish the work in 30 hours as 24 workers are needed. Now स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कौन से प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा प्रॉब्लम इनवर्स प्रोपोर्शन का है हम देख लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.